Good morning, student. Today I am start the biology chapter of class 10th. How do organisms reproduce? Okay, means this chapter is totally explanation about the reproduction chapter. Okay, student. Now I am going to explain this chapter reproduction. Okay, student. This is the introduction of about this chapter. Means this is the introduction part. Okay. So let me start the introduction part. Reproduction is defined as the biological process in which new individuals of the same kind are produced from the parent organism which are physically dependent on latter, okay, and ensure the perpetuation of the species. Student, here this definition is explaining about, ये definition क्या कह रहा है कि reproduction एक ऐसा process है जिसमें ये एक biological process है जिसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल्स हो उससे प्रोड्यूस हुआ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, उसी ही जैसा हो, ठीक है, उसी सेम काइंड हो, उसी के ही जैसा हो, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. बट वो जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो इंडिविजुअल्स क्या होगा, बर्न होगा, ठीक है, वो क्या फिजिकली मीन सेम काइंड ऑफ दिस स्पीसीज, इसी के ही जैसा क्या होगा, वो अगला स्पीसीज जो भी ऑफस्प्रिंग रिलीज होगा वो ऐसा ही होगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट, नाउ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? There are two types of reproductions. Okay, reproductions which are mentioned below. ठीक है, नीचे दिया गया है. First, asexual mode of reproduction and second, sexual mode of reproduction. Okay, student, there are two type of mode of reproduction: asexual and sexual reproduction. So let me start. I'm going to start the first topic, asexual reproduction. Okay, student. Now let me start. When the offspring arise from a single parent, okay, single individual parent, then we call it as asexual reproduction. Means offspring which are arise from a single parent. Okay student, means ऐसा offspring जो क्या हो, एक single parent से क्या हो, प्रोड्यूस हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, asexual mode of reproduction बोलते हैं. It include, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मीन्स आई कैन से दैट कि asexual reproduction के भी पार्ट्स होते हैं, फर्दर पार्ट्स होते हैं: fission, fragmentation, okay, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation. Okay student, now I'm going to start the first type of asexual mode of reproductions, fission. Okay, fission is the process, okay student, fission is the process of asexual reproduction in unicellular, okay, unicellular organisms such as amoeba, paramecium and others protozoans. Student, here this definition is explained that जो fission का process होता है क्या होता है, asexual mode of reproduction का होता है, और ये किस में होता है, unisexual mode of reproduction में होता है, unisexual organism में होता है. Okay student, जैसे कि example क्या है, amoeba, paramecium and others protozoans. Okay student, so अब यहाँ पे स्टूडेंट देखना, ये जैसे एसेक्सुअल का पार्ट्स, मतलब एसेक्सुअल के पार्ट्स में इंक्लूड थे, ये सभी उसके पार्ट्स हैं. ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे. वैसे अब फिजन के भी फर्दर पार्ट्स हैं. ओके, फिजन के पार्ट्स देखो, ये जो फिजन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप: बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन. ओके स्टूडेंट, सो बाइनरी फिजन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बाइनरी फिजन. व्हेन द सिंगल इंडिविजुअल्स बॉडी डिवाइड इनटू अ टू डॉटर सेल, जब कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जब उसकी बॉडी क्या हो, दो पार्ट्स में डिवाइड हो, किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मींस दो पार्ट के डॉटर सेल में डिवाइड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं. लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं. ओके, सो लुक एट दैट, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं. हम लोग फिजन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिजन्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी फिजन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. ओके स्टूडेंट, एंड वी नो दैट द शेप ऑफ द अमीबा इज इरेगुलर. ओके स्टूडेंट, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेज, दिस अमीबा इज कन्वर्टेड इनटू दिस लाइक स्ट्रक्चर. फर्स्ट, द अमीबा सेल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. व्हाट? Amoeba nucleus is divided into two types. Means amoeba nucleus is like this. Okay, ये अमीबा जो होगा क्या होगा, 20 इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोलॉसिस होगा. ठीक है, मींस दो भाग में ये क्या होगा, डिवाइड होगा. ओके स्टूडेंट, और ये क्या हमारे साइटोप्लाज्म है, अमीबा के अंदर के सब क्या है, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेज, द अमीबा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स इन द दिस एंड दिस. ओके, अमीबा कितने भागों में डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया.
Okay student, and this all the part is inside the amoeba is called cytoplasm. ठीक है, the jelly-like substance inside the amoeba is called what? Cytoplasm, and the next stage is in amoeba. Then the cytoplasm is also classified into two. अब क्या होगा, cytoplasm दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. जैसे एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा आपका और एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा. इसमें सारे क्या होंगे, साइटोप्लाज्म भरे होंगे. ठीक है, ठीक है. देन आफ्टर दैट आपका अमीबा क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, एंड दोनों पार्ट में क्या होगा, हमारे न्यूक्लियस फिलअप होंगे. ठीक है, न्यूक्लियस भरे होंगे एंड ये सब क्या होंगे, हमारे साइटोप्लाज्म होंगे. ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा क्या था, हमारा ये एक सिंगल इंडिविजुअल था. ये हमारा क्या था, सिंगल अमीबा था. ठीक है, एंड फाइनली ये अमीबा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अमीबा हमारा दोनों अमीबा किसमें कन्वर्ट हो गया, टू डॉटर सेल में हो गया. किसमें कन्वर्ट हो गया, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए. सो स्टूडेंट, दिस डेफिनेशन इज लुक एट देयर. ये डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, सिंगल इंडिविजुअल, ये हमारा सिंगल इंडिविजुअल्स है. सिंगल इंडिविजुअल की जो बॉडी होगी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. किसमें डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे. स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मल्टीपल फ्यूजन. हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा. When the single individual, जब जो कोई भी सिंगल इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल डॉटर सेल. ओ ये देखो, जैसे ये हमारा अमीबा है, इस अमीबा का क्या, ये जैसे ये अमीबा है हमारा अमीबा, ये वो सिंगल बॉडी था. ठीक है, ये पहले क्या न्यूक्लियोसिस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए. उसके बाद क्या हुआ, जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. देन इट आफ्टर चेंज इनटू द टू डॉटर सेल. ओके, वैसे ही क्या होता है, जो मल्टीपल फ्यूजन होता है स्टूडेंट, उस मल्टीपल फ्यूजन के अंदर की जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या होते हैं, मल्टीपल बॉडी में डिवाइड होते हैं. ठीक है, कितनी बॉडी में डिवाइड होते हैं, मल्टीपल बॉडी में डिवाइड होते हैं. सो लुक एट दैट लाइक दिस. सपोज दिस इज द क्लेमिडोमोनास. ओके स्टूडेंट, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लेमिडोमोनास. ओके स्टूडेंट, this is the structure of Chlamydomonas. Okay student, now it will converted into like this. This is the structure of Chlamydomonas. Okay, यहां पे क्या होगा, इसमें इसके जो न्यूक्लियस होंगे, ये भी क्या होंगे, अंदर ऐसे इसके स्ट्रक्चर की कॉपी रेप्लिकेशन स्टार्ट होंगे. ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट की इसकी खुद की कॉपी इसके अंदर ही तैयार होना स्टार्ट होंगे. ठीक है स्टूडेंट, वी नो दैट, हमें पता है कि सपोज अगर हम किसी भी हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 1 kg का हम पैकेट्स लेते हैं, अगर उसमें 1 kg से ज्यादा अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें रखते हैं, तो क्या होता है, वो पैकेट फट सकता है. एज लाइक सेम हियर, जैसे जैसे इसकी बॉडी में इसकी कॉपी तैयार होगी, ठीक है, तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेक कर जाएगा. क्या कर जाएगा, क्रेक करेगा. तो इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे होगी. ठीक है, तो इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर में से इसकी बॉडी के इनसाइड जितने क्लेमिडोमोनास की रिप्लिकेशन कॉपी बनी होंगी, जीरोक्स बनी होंगी, मींस डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ये क्या होंगे, बाहर निकलेंगे. ठीक है, ये बाहर निकलेंगे, मींस ये क्या हुआ, इसका मल्टीपल बॉडी का मींस मल्टीपल बॉडी में ये कन्वर्ट हो रहा है ना स्टूडेंट. देखो यहां पे क्या रहा है, एक क्लेमिडोमोनास से कितने क्लेमिडोमोनास बनने हैं, बहुत सारे बनने. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्यूजन स्टूडेंट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड वीडियो, मींस सेकंड टॉपिक. ओके स्टूडेंट, सो okay student, the next topic is fragmentation. This is the second portion of the asexual mode of reproduction, and first is fission. Okay, now I am going to start the second topic of asexual mode of reproduction, fragmentation. Okay student, they are reproduced by the splitting their body into several small pieces called fragmentation. Means student, जो फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी बॉडी क्या होती है, स्प्लिट होने लगती है. ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में क्या होने लगती है, स्प्लिट होने लगती है. सो उन स्प्लिट पार्ट्स को, उस स्मॉल स्प्लिट पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, हम क्या उस स्मॉल पीस ऑफ जो मतलब स्प्लिटिंग पार्ट्स हो रहता है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, एंड होल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज budding. What? Budding. A budding on the body appear as a result of repeated to division of cell. Student, once more, कह रहे कि a budding on a body, बॉडी पे क्या होने लगता है, बर्डिंग्स होने लगते हैं. appear as a result के तौर पे हमें दिखता है. ठीक है, repeated of division of cell. ये होता क्यों है, क्या क्या कह रहा है कि बॉडी पे बर्डिंग होने लगता है, एज रिजल्ट पे हमें दिखता है कि बॉडी पे बर्डिंग होती है. ठीक है, और सेल का क्या होने लगता है, डिवीजन होने लगता है. ठीक है, दिस लेटरल ब्लग इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं. जो मतलब एक एक जो ब्लग्स आते हैं उस बॉडी पे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं. ओके, द बर्ड्स स्लोली इनलार्ज, उसके बाद बर्ड्स क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं. उनकी साइज क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है. क्यों बढ़ती है, बिकॉज द डिवीजन ऑफ द सेल. क्या होता है, सेल का डिवीजन होने लगता है. ठीक है, और उससे क्या होता है, सेल की जो साइज होती है इनलार्ज होने लगती है,
बढ़ने लगती है एंड डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा, वो किसमें बदल जाता है, हाइड्रा में बदल, न्यू हाइड्रा में बदलता है, ठीक है, ऑन अ बॉडी, तो उसकी बॉडी किसमें हो जाती है, बदलती है बड़े में, मींस उसकी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक जो बर्ड्स होता है वो उसका सेल क्या होता है, लार्ज होने लगता है, बॉडी बढ़ने लगती है, और वही बॉडी तो किसमें बदल जाता है, एक न्यू हाइड्रा में बदलता है, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट्स, उस पेरेंट्स के बॉडी पे। फाइनली इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और फाइनली लास्ट में क्या होता है कि वो पेरेंट बॉडी से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ओके स्टूडेंट, एंड ग्रो इनटू अ न्यू हाइड्रा, वो उसके बाद क्या होता है, वो किसमें, एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट होने लगता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक नया हाइड्रा बोलते हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज बर्डिंग, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट, ओके। Here I am taking the example of budding, देखो मैंने ईस्ट का एग्जांपल लिया स्टूडेंट, ये क्या हमारा ईस्ट है, ठीक है, और ये हमारा जो ईस्ट है इसका ये क्या ब्लैक, जो ब्लैक डॉटेड है ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द वैक्यूल, ओके स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पे देखो क्या रहा है, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, मींस न्यूक्लियस क्या रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है, एंड द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाइसिस, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलाइसिस बोलते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट व्हेन द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, देन द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड द डॉटर्स बर्ड्स। यहाँ पे देखो ये जो ईस्ट है इसके दो पार्ट्स का ये क्या डिवाइड हो गया, ठीक है, एक का जो पार्ट इसका ये न्यूक्लियस दूसरा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, मींस दो पार्ट में कन्वर्ट हो गए। सो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने फिजन में पढ़ा कि अमीबा को हम क्या बोलते थे, डॉटर सेल बोलते थे, उसी तरह यहाँ पे हम बर्डिंग में पढ़ रहे थे, जो दो इसके पार्ट्स का इसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर बर्डिंग्स बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज रीजनरेशन, दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ द व्हाट, asexual mode of reproduction. So let me start. Regeneration is the ability of an organism to replace its lost body parts. ये कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट, रीजनरेशन, ये कैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, क्या उसके बॉडी पार्ट को रिप्लेस करता है, मींस कट करके क्या करता है, रिप्लेस करता है। बट दिस इज आल्सो अ मेथड बाय विच सम ऑर्गेनिज्म मल्टीपल इन नंबर, और ये क्या होता है, लेकिन ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या दो में नहीं जबकि मल्टीपल में होने लगते हैं। क्या होता है, एक ही बॉडी जो होती है, क्या होती है, एक ही जो बॉडी होता है, ठीक है, जो एक बॉडी होता है, ठीक है, उसके में एबिलिटी होती है कि क्या वो मींस क्या होते हैं, एबिलिटी इस चीज की होती है कि वो क्या होता है, उसकी बॉडी क्या होती है, सेक्शन में डाइसेक्ट हो जाती है, ठीक है, डाइसेक्ट होने के बाद क्या होता है, कई पार्ट्स में होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि दिस इज आल्सो अ मेथड बाय विच द क्या सम ऑर्गेनिज्म मल्टीपल इन नंबर, वो क्या होते हैं, कई नंबर में क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया किसका, प्लेनेरिया का, किसका एग्जांपल लिया हमने, प्लेनेरिया का एग्जांपल लिया, ठीक है, एंड प्लेनेरिया इज द example of a platyhelminthes in a class 9th we are just study about the diversity, okay, हमने डाइवर्सिटी पढ़ा है, उस डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा होगा क्या, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस पढ़ा है, प्लेटीहेल्मिंथस का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल माना जाता था प्लेनेरिया, okay student। here I'm taking the example of the planaria in the regeneration, okay। यहाँ पे देखो इसकी बॉडी का, और ये तीन पार्ट्स में क्या हुई है, डाइसेक्ट हो गई है, कट गई है, ठीक है, मींस एक ऊपर का पोर्शन, बीच का पोर्शन एंड लास्ट पोर्शन, ओके। अब देखना स्टूडेंट, ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन ये ऑलरेडी क्या है, इसमें देखो यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन स्केच किया, ठीक है, मींस इसकी बॉडी में क्या होगा, रीजनरेट होगा, क्या होगा, रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड मिडिल वाले पोर्शन भी डॉटेड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रीजनरेट हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो लास्ट पोर्शन है उसके ऊपर के पोर्शन क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहे हैं। फाइनली क्या होता है, फाइनली जो बॉडी डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड स्केच लाइन मैंने किया है, वो क्या होता है, बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस क्या, एक प्लेनेरिया से, ठीक, एक प्लेनेरिया तीन में डाइसेक्ट हुआ, उसके बाद वो तीनों क्या हुए, मतलब रीजनरेट हुआ, और फाइनली क्या हुआ, तीन मतलब एक प्लेनेरिया से तीन प्लेनेरिया क्या हो गए, रिप्रोड्यूस हो गए, ओके स्टूडेंट। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं लिजर्ड का, ठीक है, आप लोग क्या देखो अपने घरों में, देखो कि जो लिजर्ड होती है छिपकली, तो उसके क्या होते हैं, जो टेल होता है जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो कट जाता है, ठीक है, वो कटता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसी छिपकली का जो मींस टेल होता है रीजनरेट होकर फिर से बढ़ जाता है। दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर यू, ओके ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि इन मेजोरिटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये क्या ज्यादातर इसकी मेजोरिटी किसमें देखी जाती है, बैक्टीरिया में, और किसमें, फंजाई में देखी जाती है, ओके स्टूडेंट। नाउ इन दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, ओके स्टूडेंट। व्हाट कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। द बेस्ट एग्जांपल इज राइजोपस
राइजोपस हो गया, ओके स्टूडेंट, मुकोर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा. दिस ऑल द प्रोसेस ऑफ मींस दिस ऑल द टॉपिक इज रिलेटेड टू द asexual mode of reproduction. Okay student, now student, this all the explanation of this video means of this chapter. Okay, and now I'm going to explain the next topic, means when I'm just explaining the vegetative propagation, okay, and the sexual mode of reproduction in my next video. Until you will just learn about this chapter from this video, okay, from this video. Okay, आप इस वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है. ये हमारा वीडियो का इस मींस रिप्रोडक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो, ठीक है. आपको मैं सेकंड पार्ट वीडियो फिर से आप लोगों को लिंक दूंगा, ठीक है. आप लोग उससे पढ़ना पहले से, उसके बाद सबसे पहले आप इससे पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट.